Ask the question to Jagu Dada. Jagu Dada ji, starring in that wonderful and iconic film, years have passed, but whenever someone watches that film, it still stirs the emotions right there, and the cinema has evolved over the years. We just like to know, when you were shooting that film, any particular incident you'd like to highlight, and how has the journey been so far from that film, because that was, I believe, one of your initial in the career, one of the iconic films, and how was it to be starred in it, and your expression of gratitude and how you felt, Jagu Dada, from that film to now. स्टेज पर मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन को मेरा सादर प्रणाम। दिव्या जी, बॉस सर, बाकी बड़ू, आप लोग इतने सब आए ले बैठ के, बोलने को ज़्यादा आता नहीं, लिख के देंगे तो बोलूँगा। दिल में सारी बातें हैं, सिंसेरिटी लेवल अपना बराबर है, संभालने वाला अगर कोई मिल गया तो बहुत होता है। एक पत्थर को उठा के सितारा बना दिया इन्होंने, जो मैं ये साउथ बॉम्बे में रहता था, वो हकीकत है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और शोमैन बोलते तो वाकई है, ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई है जो हम भी देखते थे, कालीचरण से लेकर विश्वनाथ, ताल, क्रोध, सब देखे दादा। तो बॉस के पिक्चर में आना, यहाँ तक पहुँच के यहाँ बैठना इतने नेशनल फिल्म्स डिवीज़न में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है बड़ू। तो मेरे को ऐसा एक मौका भाग मिल्खा भाग के साथ मिला था, तो उसमें कहानी मैं पार्टीशन की कहना चाह रहा था कि इतने साल हो गए, एक मुल्क के दो टुकड़े हो गए, फिर 2 से 3 हो गए, और फिर भी जो हमारे अंदर की नफ़रत है वो नहीं मिटी है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, बांट लिया मुल्क, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इसमें मुझे मिल्खा सिंह की कहानी मिली थी। एक 12 साल का बच्चा जिसने अपनी आँखों के आगे मतलब दंगे देखे, उसमें 1947 के जो हमारा विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसमें उसके माता पिता जाते रहे, उसके भाई बहन, कज़न ब्रदर, पूरा 2000 का गांव पूरा साफ़ हो गया। और यही नहीं, वहाँ नहीं, हर, हम बोलते हैं दोनों तरफ, बट कुछ था, एक पागलपन का माहौल था, हम जानते हैं, उसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, मैं आगे क्या बताऊं। तो फिल्म में उसके बारे में बनाना चाह रहा था। और वो आके एक रेफ्यूजी कैंप में रहता है, उसको उसकी वहाँ उनकी बहन मिलती है, जो दिव्या जी ने पार्ट प्ले किया था। Cinema, as we all know, कि it has played a very pivotal role in breaking the negative stereotypes in the society, creating the awareness in the society, bringing equality in the society. So government is very much cognizant of this. So as I mentioned just a few minutes back, कि media and entertainment sector is the most booming sector after the IT sector in India. It is growing at an annual growth of more than 25%. Wow. So government has taken a cognizance of it. They have set up a task force for providing the skilled opportunity to the youth in terms of in AVGC sector, which the country is doing very well, and it is the future of this industry. So the government is about to set up an institute like FTI to train under the PPP mode, to train in this AVGC sector also. Also the 75 creative minds, it has been taken at a big platforms in this coming 53rd International Film Festival of Goa. The youth, the primary aim is to nurture them, to make them an icons of the cinema. So the government is taken it very seriously. We have identified 10 creative fields in which the applications will be invited, and all these youths, they will be given a kind of mentorship with the international filmmaker and with the domestic filmmaker in Goa, and then they will be given an opportunity to make a short film also, and they will be associated with the qualified technicians also, so that they learn the nuances of the filmmaking, they get attracted to this field. देखिए, मुझे क्या लगता है कि फिल्म मेकिंग जो है कोलैबोरेटिव मीडियम है। शुरुआत जो है, जो स्रोत जो है वो लिखाई है, वहाँ से होती है। तो जब आप कोई इस तरह का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है? देशभक्ति की बात जब हम करते हैं, वो आपके लिए क्या मायने रखता है? वो आपके लिए वही मायने रखता है
जिस लेंस से आप उस सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, और वो जो लेंस है वो आपको अपनी परवरिश से मिलता है। देशभक्ति की जो बात है वो कई तरीके से जाहिर की जाती है। जिंगोइज्म एक तरीका है, मैं नेगेटिव अंदाज में नहीं बोल रहा हूँ, और एक है बहुत ही संवेदनशीलता से उस जज्बे को समझना। तो मुझे क्या लगता है, देशभक्ति इज़ नॉट सो मच अबाउट डिस्प्ले, बट इट इज़ इन द एक्शन, इट इज़ इन डूइंग। ये कहने की उतनी बात नहीं है जितना करने की है। तो सिपाही जो अपनी जान दे रहा होता है सरहद पे, वो कर रहा होता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो करता है वो देशभक्ति होती है। Can change the world, whether when you make a good film with its audio and visual implements, the impact it leaves on audiences, which no other source of media can do, And great filmmakers over here have done that in past. I'm a big fan of Rakesh ji. Subhash ji though is a legend and will always remain. I'm surprised he's not making more movies, but he needs to. So when the script of Sher Shah came to me, actually not the script, the story idea, a friend of mine gave it to me, and I started reading about Vikram Batra. हम अभी युवा की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक अहम बात मुझे बहुत ही दिल को छू गई कि जब हम 22, 23, 24 साल के हुआ करते थे, हम लोग को ज़िंदगी की समझ ही नहीं थी, और क्या करना चाहते थे हम वो भी नहीं पता था। और आज के मोस्ट ऑफ द युवास दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू। और ये एक लड़का 24 साल में सब कुछ कर गया और अपनी जान भी दे गया, और इतनी सी छोटी ज़िंदगी में उसने सब कुछ हासिल कर लिया, परमवीर चक्र, अपना देश का नाम। तो मैं बोला ये मैसेज हमारे युवा को जाना चाहिए, कि in the small age of 24 you can achieve a lot, you don't have to live 100 years. Yeah. आज भारत के 135 करोड़ लोग के चेहरों पे मुस्कुराहट है, दिल में खुशी है कि आज के दिन में भारत का हर नागरिक अपने देश प्रेम के लिए उमड़ रहा है। ये मैं देख सकता हूँ टेलीविज़न में भी लोगों को मिलते हुए भी, और ये जेन्युइनली एक आज़ादी का अमृत महोत्सव बन गया है। जब आप अमृत महोत्सव का कहते हैं उसमें पॉजिटिविटी है, उत्सव जो महान है, जो उसको भारत की आज़ादी के 75th ईयर, और हर नागरिक को मैं देख सकता हूँ कि उसके दिल में कोई चर्चा नहीं है, डिबेट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, वो एक देश प्रेम है। हर एक के ज़बान पे एक गाना है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, आई लव माई इंडिया, एवरीबडी सेइंग दैट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी हियर। आज जो हमें नवाजा है इंडियन म्यूजियम ने, हमारी फिल्म कर्मा दिखाई जा रही है सबको, और आज जो चर्चा हुई कर्मा के बारे में कि इतने सालों के बाद भी ये फिल्म लोगों के दिलों में छाई हुई है, क्योंकि ये फिल्म दिल से लिखी थी, दिल से बनाई थी, पैसे से नहीं बनाई थी। और आज की मैं बात करूँ, आज आप एक ऐसी जगह पे आए हैं जो सिनेमा घर के हिस्टोरिक जगह है, उसमें आके फ्लैग होस्टिंग करना कितनी प्राउड की बात थी आपके लिए? मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूज प्राइड दैट यू आर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेजिंग, और आप अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आप खड़े होते हैं ना तिरंगे के सामने, ये सल्यूट करते हैं, वो फीलिंग अलग है, और वो करने का मौका मिला सबके साथ यहाँ पर एक साथ। उसे बयां करना शायद मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि बहुत खुश हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।